Hello guys, in this video we are going to see basic Python programming, how we write Python code, what are syntax for basic codes that we are going to use later on in writing codes for our data structure and algorithm course. So let's see what are the things we are going to cover in this video. Basic Python program. It's more like syntax of Python. We are going to see how we write Python codes, how we write loops and all those things. Basic Python program. First we will see, okay, in addition to this, I have already uploaded one video in this playlist which explains how to do setup for Visual Studio Code to write Python codes, Python programs. We are going to write all our codes on Visual Studio IDE. So please go through that video if you have not already seen it. That will explain how to do setup, how to add extensions in Visual Studio to run Python codes, and I have explained clearly in that video how to run Python codes, how to debug it line by line. So please go through that video and do the setup before watching this video. So if you have not already done it, then you are advised to go through that video and do the setup first. Okay, all right. Then what are the things that we are going to see in this video? We'll see basic syntax of Python programs. We will see how we write functions in Python. Our topics for Python programming are basic only because as a part of syllabus of GATE DA, Python we need not to cover in deep because Python is very vast topic. It does so many things. We only need to do basic Python so that we can understand the implementation of data structure and algorithm using Python. So we will see functions in Python. We will see how we apply loops, iterative statements, if else, conditional statement, how we make some statement as comment in Python, how we take inputs in Python. We will also see how we use arrays, class, and typecast, all those things. In input also we will see how we do typecast. Sorry, typecast. All these things, basic things we are going to see. We will also see like how we apply recursion. We will take example like calculating factorial, all these things. And anything that comes while writing the code in my mind, I will explain it. So let's go to the Visual Studio, we'll write
code there. All right. So let's create file first. File, go to file, new Python file. Let's name it basic Python program. Save it here only. Okay, let's see. First, we will see the syntax of Python program. In C and C++, although Java, we see curly braces like this. That shows a code block starts here and ends here. But Python does not use this curly braces. पाइथन में ये कर्ली ब्रेसेस हम यूज नहीं करते हैं कोड ब्लॉक के लिए। इसमें जो इंडेंटेशन होता है, जो एक लाइन से हम लिखते हैं, वही उसको ब्लॉक को डिफाइन करता है। क्या मतलब है, अब देखो, जैसे मैं लिखता हूँ x इक्वल टू 10 + 12 ऐसे, फिर मैं लिखता हूँ y इक्वल टू x। इन दोनों को यदि मैं थोड़ा दूर पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, और फिर मैं नीचे लिखता हूँ, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल जैसे मैं लिखता हूँ इफ़ ए इक्वल टू कंडीशन चेक कर रहे हैं 2, तो कुछ करना है, प्रिंट करना है। आई एम गिविंग सिंपल एग्जांपल्स, इज 2 लाइक। जो भी चीज़ इस लाइन में हम लिखेंगे वो इस इफ़ के अंदर आएगा। कोई यहाँ ब्रैकेट नहीं होता, कोई कर्ली ब्रेसेस नहीं होता। वट एवर वी राइट इन दिस ब्लॉक, in this line, indented this far from the beginning, they all will come under this if statement, like print another, sorry, print 2 again, like this। ये दोनों ही स्टेटमेंट इस इफ के अंदर आएगा। हमने कोई ब्रैकेट नहीं दिया, बट दोनों एक जगह से स्टार्ट हो रहा है लिखना, और इफ के बाद शुरू हुआ है, तो दोनों इफ के अंदर आएगा। उसी प्रकार से अब यहाँ एल्स लिखेंगे, इसके बाद ये यहाँ से हर चीज़ में ये कोलन देना होता है कंडीशन के बाद, और जो भी चीज़ यहाँ लिखेंगे वो एल्स के अंदर आएगा। नॉट टू ऐसे करके जो भी चीज़ लिखेंगे, ये x इक्वल टू 12 ऐसे करके लिखेंगे, ऐसे करके। और हमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ता इसमें, C++ की तरह, जावा की तरह कि इंट ए है क्या है। पाइथन बहुत ही फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। हम यदि a बराबर 12 लिखेंगे तो अपने आप ही a/12 ले लेगा। a इक्वल टू किसी का नाम लिखेंगे, शेखर ऐसे कुछ लिखेंगे, तो वो अपने आप ही स्ट्रिंग हो जाएगा। तो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। तो ब्लॉक के बारे में मैं ये बोल रहा था कि एल्स के बाद ये दोनों एक जगह से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों एल्स का पार्ट है। अब जो भी चीज़ हम यहाँ लिखेंगे, कोई दूसरा फंक्शन यहाँ से बनाए, तो ये अब उसका पार्ट नहीं है, क्योंकि ये देखो एल्स के साथ है, इसके बराबर नहीं है लिखा हुआ, तो ये इसका पार्ट नहीं है। इस तरह से ये ब्लॉक्स में लिखे जाते हैं। अब देखते हैं कि कैसे लिखते हैं कोड्स इसमें। पहले तो कोड का जो एग्जीक्यूशन होता है, हम देखते हैं C++ में मेन फंक्शन कॉल होता है हमेशा। यहाँ यदि आप मेन को डिफाइन करोगे तो वहाँ से कॉल होगा, नहीं तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। जैसे देखो, मेन फंक्शन को कैसे डिफाइन करना है ये आप देख लो, ये हर जगह काम आएगा। इफ़ एक नेम करके वेरिएबल होता है पाइथन में, कंपाइलर का वेरिएबल है। यदि नेम मेन है तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करें, इसका मतलब ये मेन वाला फंक्शन का डेफिनेशन है, यहीं से सब कुछ चालू होगा। यदि इसके बाहर हम कुछ लिखे हैं तो वो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन यहाँ से ये अपने आप ही कॉल होगा। ये वाला जो मेन करके नेम आएगा, ये अपने आप ही कंपाइलर भेजेगा एक नेम मेन सेट करके। जिस तरह से मेन फंक्शन अपने आप ही सी में कॉल हो जाता है, जावा में कॉल हो जाता है, उस तरह से ये अपने आप ही मेन नेम को मेन सेट करके
एग्जीक्यूट करना चालू करता है पाइथन में। तो यहाँ से कॉल होगा, सारा चीज़ यहाँ से हम ये ऐसा समझ सकते हैं अपने कोड में कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। हम इसी के रेफरेंस में सारा चीज़, कोई फंक्शन उधर लिखेंगे तो यहीं से कॉल करेंगे, तो हम समझेंगे यहाँ से सब कॉल हो रहा है इस तरह से। अब देखो क्या क्या देखना है हमें, देख लेते हैं। सिंटैक्स ठीक है, ये तो लिखते लिखते सिंटैक्स भी हो जाएगा क्लियर। फंक्शंस लिखते हैं। फंक्शंस कैसे लिखते हैं पाइथन में? डेफ से लिखते हैं। जो भी चीज़ हम डेफ से लिखेंगे तो वो फंक्शन का डेफिनेशन होता है। जैसे मैं फंक्शन लिखता हूँ, कोई एक फंक्शन ले लेता हूँ, जैसे ऐड फंक्शन लेता हूँ, सिंपल सा फंक्शन, उसका नाम होता है और इसमें मान लिया कोई नंबर आना है, कोई वेरिएबल आना है तो वेरिएबल लिख दिया। और हर चीज़ का डेफिनेशन, जैसे इफ एल्स कॉलन से ख़त्म हो रहा था तो ये भी होगा। इसके अंदर इस ब्लॉक में जो भी लिखेंगे सब इस फंक्शन का पार्ट होगा, कोई ब्रैकेट से बंद नहीं होता, चालू नहीं होता। इसके अंदर इस लाइन में जितना लिखेंगे नीचे तक सब इसी का पार्ट होगा। जैसे 2 नंबर लेते हैं, उसको ऐड करके रिटर्न कराते हैं। इसमें रिटर्न करोगे तो अब रिटर्न टाइप का फंक्शन होगा, कोई अलग से डेफिनेशन अलग टाइप का लिखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं रिटर्न करोगे तो वो नॉर्मल वॉइड फंक्शन हो जाएगा। अब देखो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ जेड, जेड इक्वल टू 0 इनिशलाइज करता हूँ, जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिखता हूँ और रिटर्न करता हूँ जेड। तो ये एक फंक्शन है जो 2 नंबर लेता है, उसको जेड में ऐड करता है और जेड को रिजल्ट को रिटर्न कर देता है। ये सब एक लाइन में लिखा हुआ था, ये सारे इस फंक्शन का पार्ट है। सिंस ये फंक्शन सिर्फ डिफाइन किया हमने, जब तक कॉल नहीं करेंगे ये यूज नहीं होगा। तो यदि इधर हम एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं, यहाँ लिख देते हैं मेन फंक्शन। अभी हमने कहीं भी इसको कॉल नहीं किया तो ये कुछ नहीं, बस यहाँ प्रिंट करके रह जाएगा। एक बार रन करके देखते हैं, यहाँ सारा आउटपुट आएगा। इसको क्लियर कर देते हैं। ये सब जो भी है, आईडी को कैसे यूज करना है, इसका सेटअप कैसे, ऑलरेडी इसमें देखो पूरा एक्सटेंशन वगैरह सेटअप है, इसलिए रन हो पा रहा है। इसके लिए आप वो इससे प्रीवियस वीडियो इस प्लेलिस्ट में देख लो, उसमें पूरा सेटअप के बारे में बताया मैंने, छोटा सा वीडियो है, उसको गो थ्रो कर लो आप। ऑल राइट, यहाँ से हम रन करेंगे, रन विदाउट डिबगिंग, पाइथन डिबगर ले लेते हैं। देखो मेन फंक्शन प्रिंट किया और कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि ये बस डिफाइन है, इसको यूज नहीं किया मैंने। अब मैं यदि इसको कॉल करूँगा, सिंस रिटर्न कर रहा है तो एक वैल्यू किसी में लेना पड़ेगा। ऐड को कॉल करूँगा, 2 नंबर 12 और 8 लेके कॉल करता हूँ। अब प्रिंट करता हूँ सम को, तो ये सम प्रिंट करके देगा। एक तो ये कॉल करेगा इसको, फिर सम प्रिंट करेगा। सम में 12 8 20 आना चाहिए, इट विल डू दैट। देखो 20 प्रिंट किया, इसका मतलब यहाँ पे आया होगा अपने आप ही एग्जीक्यूशन, यहाँ से इसको कॉल किया होगा और इधर रिटर्न होके आया। ठीक है, तो ये फंक्शन का डेफिनेशन का तरीका होता है। रिटर्न नहीं भी करोगे तो उस टाइप के फंक्शंस होते हैं जिसमें हमें रिटर्न की जरूरत नहीं पड़ता है, तो रिटर्न स्टेटमेंट सिर्फ मत लिखो, बाकी ये सिमिलरली वर्क करेगा। देखो और लूप्स कैसे लिखते हैं। लूप देखो, हम फिर से एक छोटा सा फंक्शन बनाते हैं, लूप एग्जाम्पल। इसमें कोई नंबर लेते हैं और उसको जोड़ के देखते हैं, एक से वो नंबर तक जोड़ते हैं। एग्जाम्पल देखो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, एक नंबर लिए, मेरा कहना ये है, देखो मैं कह रहा हूँ लूप को हम टेस्ट करें तो क्या करेंगे, एक नंबर लेंगे, 4 लिए तो हम उसको आउटपुट देंगे 1 + 2 + 3 + 4, इस तरह करके 4 3 7 2 9 1 10 हो गया। इस तरह से हम लूप में इसको करेंगे। ये बेसिक एग्जांपल है, हमें समझना है कि लूप कैसे काम करता है। क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो देखो लूप, वाइल लूप होता है, फॉर लूप होता है, अलग अलग। तो हैश से आप यदि कुछ स्टार्ट करते हो तो वो कमेंट होता है। तो कोई लाइन कमेंट आप करना चाहते हो तो हैश पहले लिख दो, फिर लिखो आप। जैसे मैं अभी वाइल लूप का कोड लिख रहा हूँ और एक वेरिएबल रिजल्ट बना लिया हूँ जिसको 0 पहले लिख दिया हूँ। अब मैं वाइल लूप लिखूंगा, वाइल आई जो है वो लेस देन है हमारे नम से। ये वाइल लूप का सिंटेक्स हो गया, हम रिजल्ट में इसको ऐड करते रहेंगे।
रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस आई करते रहे। यही हमारा काम है, यहाँ पे यही करना है हमें, और आई को बढ़ाते भी रहेंगे एक एक से, तब एक एक जोड़ते रहेगा वो बार बार। जब आई नम से बड़ा हो जाएगा तो जोड़ना बंद कर देगा, और यहाँ इक्वल टू दे देते हैं, यदि हमको नंबर तक जोड़ना है तो इक्वल टू दे देते हैं। ठीक है, ऐसे करके ये रिजल्ट में आ जाएगा फाइनल वैल्यू। हम रिजल्ट को क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। यहाँ लिखेंगे तो ये फंक्शन से भी बाहर हो जाएगा, हमें यहाँ लिखेंगे तो वाइल के अंदर आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे रिजल्ट। ये फंक्शन के अंदर है लेकिन ये वाइल से बाहर है, ये एक वाइल लूप हो गया। लेकिन हम रिटर्न नहीं करते हैं, हमें तो लूप चेक करना है। हम यहाँ प्रिंट करके देख लेते हैं, प्रिंट रिजल्ट यूजिंग वाइल लूप क्या है, प्लस रिजल्ट प्रिंट कर लेते हैं। ये प्रिंट करने का तरीका होता है, आप प्रिंट करो, उसमें लिखो प्लस करके लिखोगे तो उसमें अपेंड करके वो स्ट्रिंग बना के प्रिंट कर देगा। अब फॉर लूप देखते हैं कैसे लगाते हैं। ये बेसिक प्रोग्राम्स है, ये सब मैं सिंटेक्स बता रहा हूँ सिर्फ, इसको यूज करेंगे बाद में। ये सब आप सिंटेक्स एक बार देख लोगे, उसको लिख लो कि कैसे यूज करते हैं। ये लेस देन इक्वल टू हो सकता है, हमें जो ज़रूरत पड़े फ्यूचर में वो ग्रेटर देन इक्वल टू भी ज़रूरत पड़े, ग्रेटर देन पड़े, लेकिन तरीका यही रहेगा लिखने का। बेसिक ये जो तरीका है वो नहीं बदलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं फोर लूप एग्जाम्पल। इसमें देखो फोर लूप में कैसे लिखते हैं, फोर कोई भी वेरिएबल ले लो आप। फोर लूप लिखने के बहुत तरीके होते हैं, हम एक दो देख लेते हैं, बाकी ज़रूरत पड़ने पे देखेंगे। फोर आई इन, आप ऐसे भी देख सकते हो, रेंज नम ऐसे दे दो। रेंज फंक्शन का मतलब होता है वो एक से लेके वहाँ तक वैल्यूज़ देगा, उतना बार वैल्यूज़ देगा आई, तो नम से कम तक देता है ये रेंज बाय द वे। तो आप एक प्लस करके ले लो तो सब सेम रिजल्ट आएगा। जो रेंज है वो यदि 10 तक लोगे 9 देता है। ये रेंज फंक्शन का अपना प्रॉपर्टीज है। तो दूसरा एक रिजल्ट ले लेते हैं, ऐसे आप डिफाइन कर दो। कोई भी इंट ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, आप बस ऐसे डिफाइन कर दो, वो वेरिएबल हो गया। अब रिजल्ट टू जो है इक्वल टू रिजल्ट टू प्लस आई करते जाएंगे, उसमें जोड़ते जाएंगे, तो ये भी सम करके दे देगा हमें। इसको भी प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट रिजल्ट यूजिंग फॉर लूप रिजल्ट टू, ऐसे करके। ये देखो फॉर लूप का तरीका है। फॉर लूप के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे आप कोई लिस्ट है आपके पास, उस पर भी इटरेट कर सकते हो, कोई एरे है उस पर। और पाइथन में कोई एरे नहीं होता है, वो पहले से डिफाइंड ऐसा एरे नहीं होता है पाइथन में। पाइथन लिस्ट ही यूज करता है अरे के फॉर्म में। ठीक है, और देखो और भी फॉर लूप का कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर आई इन, यहाँ पे पूरा लिस्ट ही ले लो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसमें सब वैल्यू के लिए आई आएगा, एक बार एक आएगा, एक बार दो आएगा, ऐसे करके। या तो ऐसे ले लो 10 अलग अलग वैल्यू ले लो, अदरवाइज लगेगा आई इटरेट कर रहा है बस 1 से लेके। देखो इसमें हम बस प्रिंट करके देख लेते हैं आई को। यहाँ पे देखो हमने छोड़ दिया, ये कॉलन छोड़ दिया। ऐसे ये सारा लूप एग्जाम्पल है, कुछ भी रिटर्न इससे नहीं करते हैं, बस देख लिए हो गया अपना काम। ऐसे लूप का हो गया। और क्या क्या हम देखते हैं, हम इसको बाद में चला के देखेंगे। ठीक है, लूप हो गया, एफ एल्स हो गया। एफ एल्स हमने नहीं लगाया, तो एक बना देते हैं एफ एल्स के लिए, ऐड। ठीक है, ऐड रहने दो, उसको छेड़ते नहीं है। हम डिफाइन कर लेते हैं ऑड इवन, सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है एफ एल्स का। कोई नंबर आया उसको पता लगाना है कि ऑड है कि इवन है। आप इसके सिंप्लिसिटी में मत जाओ, मैं बस सिंटेक्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इफ़ मुझे पता लगाना है नंबर ऑड इवन है कि क्या है। नंबर यदि 2 से डिविजिबल है, इफ़ ऐसा है तो हम बोलेंगे
कि ये ऑड है, सॉरी इवन है, पहले नम ही लिख देते हैं, नम प्लस ऐसे करके मीन्स इवन, ऐसा। इसके बाहर यहाँ से लिखेंगे तो एल्स वाला लिखेंगे ब्लॉक, यही चीज फिर से लिख देते हैं, लिख रहा, तो ये हो गया ऑड, ठीक है। ऑड इवन, ये इफ एल्स लिखने का तरीका है, यहाँ कंडीशन लिखते हैं, कोई ब्रैकेट वगैरह नहीं देते, कंडीशन चेक कीजिए और लास्ट में ये मतलब उसका शुरुआत, उसके ब्लॉक का शुरुआत, ये मतलब किसी भी कोड के ब्लॉक का शुरुआत है। जैसे यहाँ लिखे तो ये मतलब ये फंक्शन का ब्लॉक है, ये यहाँ लिखे तो ये कंडीशन के का शुरुआत है ना। ये हो गया, इन सबको चेक करते हैं। सम को हमने चेक कर लिया था, तो इसको हम कमेंट कर देते हैं, ऐसे करके कमेंट कर सकते हैं आप, इसको भी कमेंट कर देते हैं। इसमें भी देखो एक लाइन से ही लिख रहे हैं, लाइन कितने एक सीधा में लिख रहे हैं कि नहीं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेम इंडेंटेशन विल गिव यू सेम code block, so it is very important to write in the same line, otherwise it will go to different code block. Okay, if I start writing from here, then it is out of this function, it is out of this condition, so we have to write in the same indentation to make the code part of this block. Now we will check, अब हम क्या चेक करेंगे, लूप देखते हैं। लूप को बस कॉल कर देना है, कोई वो है नहीं, किस पे कोई नंबर देके कॉल किया हमने, देखो नंबर तो हम दे देते हैं, एक नंबर 10 दे देते हैं, या चलो 5 देते हैं, छोटा नंबर चेक करने में आसानी रहेगा। एक ही हो गया, और क्या लिखा हमने, ऑड इवन लिखा है, उसको भी चेक कर लेते हैं। ऑड इवन, इसमें भी एक बार दे देते हैं 14 दे देते हैं, एक बार कोई इवन नंबर दे दिया तो ऑड दे देते हैं, 17 दे देते हैं, 2 बार कॉल किया है हमने। और देख लेते हैं और क्या लिखा हमने, ये सब लिखा है, इसको पहले चेक कर लेते हैं और फिर देखें और क्या क्या हो सकता है इसमें, पाइथन में और क्या क्या सिंटेक्स हमें ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, डिबग करेंगे, रन नहीं करेंगे, क्योंकि हमको स्टेप्स देखना है कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं ब्रेक पॉइंट। ये सब कैसे लगाना है मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, और कैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है इस कोड में, तो उसको आप देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो स्टार्ट डिबगिंग में जाइए और इसको कुछ सिलेक्ट कीजिए, स्टार्ट हो गया। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि हमारा आउटपुट क्लियर रहे, जो आए वही आए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, जैसा मैं बताया था, इस पर क्लिक करो, आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। आया लूप एग्जाम्पल पे, कहाँ गया, देखो लूप पे गया, वहाँ रिजल्ट 0 आया, ठीक है कोई बात नहीं। और देखो नम 5 आया, 5 के साथ इसको कॉल किया था, 5 आया, मुझे 1 से लेकर 5 तक को ये जोड़ के बताएगा। तो देखो एक बार आया, ये क्या हुआ एक बार देख लेते हैं, कुछ रिटर्न हो गया क्या, अच्छा मैंने शायद ये क्लिक कर दिया, कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। लोकल आई वेयर इट इज नॉट एसोसिएटेड विथ ए वैल्यू, तो मैंने डिफाइन नहीं किया, देखो हमें पता चल गया क्या एरर है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये एक लर्निंग है आपके लिए कि कोई प्रॉब्लम आएगा उसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये बोल रहा है आई डिफाइन नहीं है, ठीक है, और वैल्यू भी नहीं है इसमें, तो आई को फोर में डिफाइन नहीं करना पड़ता है, लेकिन वाइल वगैरह में यूज करेंगे तो इसको डिफाइन करना पड़ता है। हम एक से इनिशियलाइज करते हैं, एक से लेकर नंबर तक जोड़ना है हमें, ये हो सकता है एक पॉसिबल एरर। एरर आना बहुत अच्छा चीज़ है, इससे क्या है कि आप सीखोगे। स्टार्ट डिबगिंग हमने यहाँ पे सेट कर दिया ऑलरेडी, ये ब्रेक पॉइंट, स्टार्ट डिबगिंग यहाँ आ गया, यहाँ आके रुक गया हमारा कॉल। इसको क्लियर कर देते हैं विंडो को, ताकि हमारा आउटपुट अच्छे से दिखे। अब वन स्टेप यहाँ से जाएंगे, अगला स्टेप, अगला स्टेप,
यहाँ पे देखो आई बार बार जोड़ा होगा, हम 5 तक जोड़ रहे हैं, तो हमारा पर्पस है कि वाइल लूप काम कर रहा है कि नहीं। देखो अच्छे से काम किया, रिजल्ट देखो 15 आया। अब 5 तक जोड़ोगे 1 से लेके तो 15 आ जाएगा। उसी तरह से देखो रिजल्ट 2 है, रिजल्ट 2 में जोड़ रहे हैं 5 तक। ये रेंज 6 क्या देगा, ये 5 टाइम्स इटरेट कराएगा। रेंज का मतलब है एक कम तक देता है। देखो फॉर लूप से भी आया 15। और ये अनदर तरीका था हमें लूप जानने का कि ये फॉर लूप कैसे काम करता है। इस तरीके से भी लिखते हैं। इसमें सारे देखो आप आई को वो इटरेट कर रहा है, 10 2 3 31 4 5 6 सारा आ रहा है ना, सारे आ रहे हैं। इसी तरह से हमने लूप को देख लिया, लूप से बाहर आ गया। देखो फिर ऑड इवन नंबर भेजा मैंने, क्या भेजा 12 भेजा, शायद फर्स्ट हमने 14 भेजा है। देखो 14 इवन नंबर है, वापस बाहर आ गया। 17 भेजा, 17 ऑड नंबर है, वापस बाहर आ गया। ये कंप्लीट हो गया। तो ये सब कोड लिखने का पर्पस ये है कि आपको बता सकें कि बेसिक पाइथन में कोड लिखते कैसे हैं, ये किस तरह से फंक्शन लिखते हैं, किस तरह से ये लिखते हैं, ऑड इवन कैसे लिखते हैं, मेन फंक्शन, कोड का ब्लॉक क्या होता है, कमेंट कैसे होता है। और ब्लॉक कमेंट आपको करना है तो 3 बार ये दबाओ ऊपर वाला, ये ब्लॉक कमेंट होता है। यहाँ से आप जो भी लिखोगे ये ब्लॉक कमेंट है। उससे हैश से क्या एक ही लाइन कमेंट हो रहा था, इससे आप जितना लाइन इसके अंदर लिखोगे, मल्टीपल लाइंस लिखोगे तो सब कमेंट रहेगा। ये ऐसे कमेंट करते हैं। और एक चीज़ देख लेते हैं कि इनपुट कैसे लेते हैं। जैसे हमें इनपुट लेने की ज़रूरत पड़ता है, इनपुट कैसे लेते हैं पाइथन में। देखो कोई भी वैल्यू मुझे इनपुट में चाहिए, वैल्यू इक्वल टू, तो सीधे आप इनपुट लिख दो। पाइथन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, आप इसमें जो लिखोगे वही करेगा। ये इनपुट कर दो तो इनपुट करेगा। यहाँ पे लिख दो इंटर वैल्यू। इसमें क्या है ना, ये इनपुट जो फंक्शन है ये एंट्री आपसे ले लेगा और स्ट्रिंग में रिटर्न करेगा। जैसे आप नाम लिखो, नाम में अगर 12 लिखे हो तो 1 2 को स्ट्रिंग में देगा। यदि आपका वो वैल्यू इंटीजर है तो इसको आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा ऐसे करके। टाइप कास्ट करना पड़ेगा। ये टाइप कास्टिंग मतलब इसको इंटीजर में बदल दो ताकि हम उसको प्लस माइनस अलजेब्राइक ऑपरेशन उस पर कर सकें। जैसे हम वैल्यू में जोड़ रहे हैं लेट्स से 10, वैल्यू इक्वल टू वैल्यू प्लस 10, और प्रिंट करके देख रहे हैं वैल्यू क्या है, वैल्यू इंटर प्लस 10 इज, इसको भी देखो टाइप कास्ट करना पड़ेगा। यहाँ हम स्ट्रिंग बना रहे हैं क्योंकि ये प्रिंट फंक्शन स्ट्रिंग आउटपुट देता है, तो ये मेरा भी इंटीजर होगा, जो भी इनपुट दिया होगा मैंने वो स्ट्रिंग बना देगा, है ना, ऐसे करके। अभी इसको रन करते हैं। इन सबको अब हम कमेंट कर देते हैं क्योंकि देख चुके हैं इनका कैसा काम करने का तरीका है। लेट्स सी नाउ दिस रन विदाउट डिबग करने की जरूरत नहीं है। देखो इंटर वैल्यू आया, यहाँ पे आपको एंट्री करनी पड़ेगा। यहाँ क्लिक करके यहाँ मैंने मान लिया 15 दिया, तो इंटर वैल्यू प्लस 10 इज 25, मतलब 15 को ये नंबर की तरह लिया क्योंकि हमने टाइप कास्ट कर दिया। यदि नहीं लेते तो शायद कुछ गड़बड़ हो सकता था। या देखते हैं, मान लिया 10.5 इसमें जोड़ रहे हैं और टाइप कास्ट नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होता, क्योंकि ये स्ट्रिंग लेगा, स्ट्रिंग में कुछ नंबर जोड़ने की कोशिश करेगा। इसको क्लियर कर देते हैं। देखो इंटर वैल्यू मान ली 12 दे रहे हैं, देखो एरर आ गया। ये बोल रहा है कि कैन ओनली कॉन्केटनेट स्ट्रिंग नॉट फ्लोट। इसमें ये इसको कॉन्केटनेट कोशिश कर रहा है, मतलब उसके लिए लास्ट में जोड़ने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रिंग समझ रहा है, तो दिक्कत हो रहा है। यदि हम इसको फ्लोट बना देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये समझ जाएगा कि ये स्ट्रिंग नहीं है, ये फ्लोट है। देखो आप इसको रन करेंगे, इंटर वैल्यू 13, देखो 13 प्लस 10 23.5 इजीली दिया। तो ये टाइप कास्ट करना जरूरी होता है इनपुट फंक्शन के बाद, ठीक है। तो ये सब बेसिक प्रोग्रामिंग था। आप लोग
कमेंट कीजिएगा इस वीडियो पे कि कुछ कुछ और चीज़ें, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ है, हमें जो ज़रूरत पड़ा उस हिसाब से लिखे हैं, और क्या ज़रूरत पड़ेगा वो कमेंट कीजिएगा। अलग से एक वीडियो तैयार करेंगे उन सब टॉपिक को लेके कि पाइथन में वो सब कैसे करते हैं। हम ये सब बेसिक तौर पे आपको तैयार कर रहे हैं पाइथन में, ताकि आप डेटा स्ट्रक्चर को कोड कर सके, स्टैक, क्यूज, ये सब ट्रीज वगैरह कोडिंग कर सके पाइथन में, ताकि समझ सके स्टैक ट्री ये सब होता क्या है डिटेल से। ओके, थैंक यू गाइस, हैप्पी लर्निंग।